A parent unstable element disintegrate into a daughter element, students. And if the daughter element is also unstable, it further disintegrates until it attains the stable form. That is called radioactivity. Radioactivity is a phenomena of spontaneously emitting, highly penetrating, invisible, fast-moving radiations from the nucleus of an unstable parent element in order to attain stability. Students, is called radioactivity. Okay, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. रेडियो एक्टिविटी है क्या स्टूडेंट्स? अगर अगर मैं बोलूं रेडियो एक्टिविटी क्यों होता, क्यों है, रीजन क्या है, यानी कुछ न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है. यानी अनस्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड होता है? ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्स. जब न्यूक्लियर फोर्स सीज हो जाता है या कम हो जाता है, इन दैट केस व्हाट हैपेंस? इट लीड्स टू अनस्टेबिलिटी. यानी ये कहाँ तक एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स? अगर तुम देखोगे तुम्हारा स्टेबिलिटी के हिसाब से, सो द एलिमेंट व्हिच हैज द हाईएस्ट न्यूक्लियर डेंसिटी स्टूडेंट्स, जिसका न्यूक्लियर डेंसिटी इज हाई, we consider as lead. Plum bomb 20782. lead, इसका हाईएस्ट न्यूक्लियर डेंसिटी we consider as. इसके बाद वाले elements after atomic number greater than 82 are considered to be can be radioactive in nature. सब एक स्टूडेंट्स तुमने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स. element after Z equal to 82 are considered to be what? radioactive elements students. तभी तुम्हारे lanthanides और actinide series होते हैं, which occupies a place below the periodic table. All those elements after uranium 23592 are called to be naturally occurring radioactive substances. तो ये कौन से स्टूडेंट्स, कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है स्टूडेंट्स? यानी 82 तक, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, 82 तक, एटॉमिक नंबर 82 तक, ये एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है बिफोर 82 दे होल्ड द न्यूक्लियॉन्स वेरी इंटैक्ट. when the nucleus has a strength of Z equal to 82, we consider less than that, it can hold that nucleons. Yani nuclear force is that much strong enough in order to hold the number of protons and number of neutrons within the nucleus of an atom of an element. ये hold कर सकते हैं. लेकिन जैसे जैसे atomic number greater than 82 हो जाता है, what happens in that case? The nuclear force ceases to act. यानी nuclear force कम हो जाता है. यानी ये actually कभी होता है हमारे possible students due to the ratio of neutron and proton. Neutron proton ratio when it exceeds 1.1 1.5 के आसपास, 1.5 and above we consider, then radioactivity phenomena takes place. That's why in general we say that elements after atomic number greater than 82 can be considered as radioactive in nature. We consider examples I can consider as uranium, thorium, radium, radon. I getting it? These are the examples I can consider. Compounds like pitch blende I can consider. Now uranium agar main leta hu to I say 235, 92, that's radioactive in nature we consider. Isotopes we had 238, 236, these are the isotopes we consider of uranium. And ye sare kaun se radioactive elements, students? These are the radioactive elements which starts giving out emissions of what? They give out emissions. That means since nucleus is unstable, अभी कोई पूछेगा स्टूडेंट्स न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों है? अगर किसी ने ये पूछा भाई न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों है, तो क्या रीजन हो गया? न्यूक्लियस इज अनस्टेबल सिंस न्यूक्लियर फोर्स ceases to act. यानी न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाता है स्टूडेंट्स. न्यूक्लियर, देखो ध्यान से सुना, दो टाइप ऑफ फोर्सेस आर देयर फॉर एन एटम. एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक होता है न्यूक्लियर फोर्स.
स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में रखता है. It holds all the electrons within the atom of an element revolving around the nucleus. That's electrostatic force. लेकिन जब भी तुम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करते हो तो न्यूक्लियर फोर्स है क्या? द फोर्स व्हिच इज विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट. और ये न्यूक्लियर फोर्स किसको होल्ड करता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. क्यों? सो सिंपल एग्जांपल, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे, since अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस विल आल्सो इंक्रीज. तो बोलेंगे हाँ सर प्रोटॉन्स तो बढ़ेंगे. अब बताओ न्यूक्लियस के अंदर एक तो न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं. न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज. आपने एटॉमिक नंबर बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते गए. ध्यान से सुना स्टूडेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते गए. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते गए तो उन प्रोटॉन्स के बीच में भी तो रिपल्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते गए तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता गया. तो कोई तो फोर्स है ना जो उनको होल्ड करके रख रहा है, विच इज दैट फोर्स वी कॉल अस द न्यूक्लियर फोर्स. लेकिन ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इन प्रोटॉन्स को होल्ड कर सकता है अप टू अ सर्टेन लिमिट. फ्रेंड्स, अप टू अ सर्टेन लिमिट, दैट इज फॉर एटॉमिक नंबर इक्वल टू 82 एंड दैट इज स्टिल लेड. 207 82 वी कंसीडर. उसके बियॉन्ड क्या होता है? द न्यूक्लियस बिकम्स अनस्टेबल. जैसे वो अनस्टेबल होता है, क्यों? न्यूक्लियर फोर्स सीज हो गया. तो क्या होता है? इट स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग. न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स. कैसे? कैसे डिसइंटीग्रेट्स? बाय एमिटिंग अल्फा और बीटा followed by गामा, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी. स्टूडेंट्स, ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियर है स्टूडेंट्स, ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियर है, पेरेंट न्यूक्लियर है, वो डिसइंटीग्रेट होता है. कैसे? या तो अल्फा निकलेगा, अल्फा के साथ में एनर्जी आती है, या बीटा के साथ में एनर्जी आती है. अल्फा बीटा कभी भी साथ में नहीं एमिट होते हैं. ये है क्या? ये सारे रेडिएशंस है. डिसइंटीग्रेट्स बाय गिविंग आउट व्हाट? रेडिएशन. अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, जिनको हम गामा रेडिएशन रेडी. बोलते हैं. यस. अल्फा बीटा कभी साथ में नहीं आते स्टूडेंट्स. अल्फा बीटा कभी साथ, या तो अल्फा होगा उसके बाद में एनर्जी आएगी, या बीटा के बाद में एनर्जी आएगी. अल्फा बीटा कभी साथ में, यानी ये एक साइड का सीरीज है इन दैट केस. यानी अगर सपोज मैंने बोला कोई एलिमेंट एमिट करता है, ध्यान से सुना, 3 अल्फा एंड 4 बीटा. अगर मैंने ऐसे बोला 3 अल्फा एंड 4 बीटा, उसका मतलब पहले 3 अल्फा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद में फिर 4 बीटा के साथ में होता है करके. लेकिन साथ साथ में साइमल्टेनियसली एनर्जी भी लिबरेट होती है, एंड दिस एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, which I made it very clear in the last lecture students. अगर तुम्हें पता हो तो मैंने सारे एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में मैंने बताया था स्टूडेंट्स. मैंने शायद एक सेट पे पूरा मैंने लिखा हुआ था. What sir, alpha gamma? I didn't get you. Who's this? Yes, हिमांशु, क्या बोल रहे हो सर? अल्फा गामा क्या बोल रहे हो? अल्फा एक सेपरेट रेडिएशन है स्टूडेंट्स. अल्फा आर पार्टिकल्स, and all those particles considered to be in form of rays, radiations. Gamma are not particles. Gamma are always radiations. यानी आफ्टर एमिटिंग, ध्यान से सुनो, कोई न्यूक्लियस होता है, उसमें से अगर अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो उसके बाद में एनर्जी लिबरेट होती है इन फॉर्म ऑफ गामा.
सो अल्फा के साथ में या तो गामा होगा, बीटा के साथ में गामा हो सकता है, अल्फा बीटा दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होते, या तो अल्फा उसके बाद में बीटा एंड देन गामा. So energy is always released when the nucleus is in a highly excited state, possessing tremendous amount of energy, students. तभी जाके स्टूडेंट्स अल्फा को हम पार्टिकल्स बोलते हैं, बीटा को हम पार्टिकल्स बोल सकते हैं, लेकिन गामा को स्टूडेंट्स कभी भी पार्टिकल्स नहीं बोलना है. गामा आर ओनली रेडिएशंस. बट नाउ वन सेज सर आपने तीनों को रेडिएशन लिखा. यस, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. And these alpha rays or alpha radiations consist of positive charge particles. That's why they call as alpha radiation. Beta rays or beta radiation consist of negatively charged particles. Therefore, they are called as beta radiations or beta particles. But gamma are not at all electrically charged. उनको charge ही नहीं है. देखो ना मैंने superscript में भी zero लिखा है, subscript में भी zero लिखा है. यानी what exactly these are? No mass, no charge. They are electromagnetic. तो जब भी ये न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है ना स्टूडेंट्स, वो डिसइंटीग्रेट करना शुरू होता है. डिसइंटीग्रेट करेगा तो ये रेडिएशंस आ जाता है. अभी देखो डिसइंटीग्रेट होके क्या फॉर्म होता है. डिसइंटीग्रेट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म व्हाट? डॉटर न्यूक्लिया. अगर ये डॉटर न्यूक्लिया है, वापस डॉटर न्यूक्लिया अगर सपोज ये भी अगर रेडियो एक्टिव इन नेचर है यानी अनस्टेबल है, तो वापस वो डिसइंटीग्रेट होगा until attains stable form. Until it attains what? Stable form, students. Until the radiations attain stable form. यानी ये डिसइंटीग्रेशन होता रहता है. कब तक? जब तक तुम एक स्टेबिलिटी पे नहीं आते. And students, stable form of every radioactive element is lead. Plumbum. तुम्हारा केमिकल नेम है प्लम्बम. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? इतना क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स क्या इतना क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. ओके. तभी जाके स्टूडेंट्स तुमने शायद देखा होगा, आई नो अबाउट इट, यू मस्ट हैव, अगर सपोज कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अगर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को तुम्हें सैंपल को प्रिजर्व करना है, तो व्हाट डू दे डू? दे पुट इट, अगर तुमने कोई ऐसा कोई कंटेनर देखा होगा जिसमें से 3 फैंस है, उसका मतलब क्या है? ये क्या बताता है कि ये कंटेनर के अंदर रेडियो एक्टिव सैंपल है स्टूडेंट्स. ये है सिंबॉलिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एनक्लोज्ड इनटू अ पर्टिकुलर चेंबर. ये जो है ना शील्डिंग, इसको बोलते हैं शील्डिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर शील्डेड इनटू लेड कंटेनर्स. समझ में आ रहा है? यानी अगर तुम कहाँ, फॉर एग्जाम्पल यू गो फॉर एट टैप्स, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन पे चले जाओ, या एट बार्क बाबा एटॉमिक सेंटर चले जाओ, वहां पे भी रेडियो एक्टिव सैंपल्स हैं. वहां पे रहता है क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हम उनका यूज करते हैं, प्लूटोनियम का यूज कर रहे हैं. सेल्फ ब्रीडर रिएक्शंस के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसके लिए हम यूटिलाइज कर रहे हैं. तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव सैंपल्स को रखते कैसे है? उनको एक एनक्लोज्ड शील्डिंग में रखते हैं, और वो शील्ड किसका बना हुआ रहता है? लेड, क्योंकि लेड हैज द हाईएस्ट न्यूक्लियर डेंसिटी. ऑल दोस एलिमेंट्स आफ्टर लेड कैन बी कंसीडर्ड टू बी रेडियोएक्टिव इन नेचर. एग्जांपल्स मैंने दिया, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, रेडॉन, कंपाउंड लाइक पिचुलिन आल्सो, दिस आर द एग्जांपल्स वी कैन कंसीडर. एस्टेटाइन, वो भी तुमने पढ़ा होगा, हैलोजेंस के अंदर नीचे की तरफ आता है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन के बाद में आता है एस्टेटाइन. व्हाट एग्जैक्टली इज द रेडियोएक्टिव इन नेचर वी कंसीडर. तो ये रेडियोएक्टिविटी है क्या? A phenomena of spontaneously emitting, highly penetrating, invisible radiations from the nucleus of an unstable parent element in order to attain stability. इसको हम बोलते हैं radioactivity. And the first person to put forward this concept was Henry Becquerel. Students, Becquerel was the one who put forward this concept of radioactivity. Students, नाम radioactivity दिया मैडम क्यूरी ने, डिस्कवरी किया बेक्वेरियल ने. सबसे पहले हेनरी बेक्वेरियल ने इसका डिस्कवरी किया. लेकिन जैसे हेनरी बेक्वेरियल ने डिस्कवर किया, मैडम क्यूरी ने उसके ऊपर रिसर्च किया, एंड देन शी सेड इट, यस, दैट दीस एलिमेंट्स गिव्स आउट सर्टेन रेडिएशंस.
And she was one who put forward that these radiations are coming out from the nucleus, and that's why she was awarded with the Nobel Prize. Madame Curie, she was awarded with the Nobel Prize because she made a very bold statement, that is that these radiations come out from the nucleus of an unstable parent element and not an stable. Now, let us go for your concept with respect. अभी ये चीजें तुम्हें पता चल गया, तो अभी देखो सीधा तुम्हारे रेडियोएक्टिव डीके के ऊपर हम जा सकते हैं. अभी फॉर एग्जांपल मैंने दिया है, सपोज मैंने दिया है इनिशियल टाइम t equal to 0 है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स which are there into a particular compound is n0. Let us say n0 is the number of atoms of a particular radioactive sample. तो तुम्हें ऐसा कोई रेडियोएक्टिव मैंने सैंपल ले दिया, ये रेडियोएक्टिव सैंपल है स्टूडेंट्स. अगेन ये रेडियोएक्टिव सैंपल के अंदर अगर तुम देखोगे स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, ये रेडियोएक्टिव सैंपल के अंदर एट टाइम t equal to 0 seconds the total number of elements present will be equal to n0. एग्रीड ना. इसमें से क्या होगा, जैसे जैसे टाइम जाता है क्या होता है, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है. कैसे? क्योंकि उसमें से रेडिएशंस बाहर आएंगे. इट स्टार्ट्स एमिटिंग रेडिएशंस ऑफ अल्फा और बीटा फॉलोड बाय एनर्जी. ओके, नाउ सपोज इफ आई से लेट n at time t, ये क्या है, let us say this will be the number of parent nuclei left, number of parent nuclei left at time t. यानी initially total number of elements were n0. Now at time t these are at t with the number of elements left, यानी कुछ number disintegrate हो चुके हैं. तो let us say that di is what, the number of decays taking place. ये क्या है, number of decay taking place in time dt. क्या ये क्लियर हुआ? सबसे पहले हर एक वेरिएबल को ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, t के साथ में मैंने n लिखा है, n0 लिखा है. ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, जब भी टाइम t इक्वल टू 0 होगा तो n by n is n0. जब टाइम t is equal to t, then the number of molecules left will be nt. Let us say in a time interval dt, एक छोटे टाइम में number of decay हुआ है dn. क्या ये पार्ट क्लियर हुआ सबको? Is this much clear? Yes, sir. So now if I say what is number of decay in time dt, answer सुना students. The number of decay in time dt is directly proportional to what? Number of parent nuclei left. Number of parent nuclei left we consider into dt with what sign? Negative sign. Students, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? ध्यान से सुनना, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स that n number of molecules, ध्यान से सुना, number of molecules, the number of elements, a number of parent nuclei left after time t, they are decreasing with time. And students, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा ये जो है वो डिक्रीज होता जाएगा. A simple example, students, ध्यान से सुनना. सपोज मैंने ये सैंपल लिया है, ध्यान से सुना, 0 सेकेंड्स. सैंपल के अंदर इफ आई से नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर 100. क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, ये पूरा एक सब्सटेंस है, ये पूरा एक रेडियोएक्टिव सैंपल है, वो डिसइंटीग्रेट होगा. तो ये सैंपल के अंदर कितने एटम्स होंगे कोई नहीं बता सकता. आई गेट इट? कितने न्यूक्लियस है दैट आल्सो वी डोंट नो. कौन सा न्यूक्लियस कभी डिसइंटीग्रेट होता है वो भी कोई नहीं बता सकता स्टूडेंट्स. यानी ये ध्यान में रखना, कभी भी कोई सैंपल डिसइंटीग्रेट होता है तो अगर किसी ने पूछा सर यहाँ पे आप बता सकते हैं कौन सा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है, नहीं हम नहीं बता सकते. हम इतना ही बता सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा डिसइंटीग्रेशन होता रहेगा. यानी 0 सेकंड्स में 100 है ना. सपोज इफ आई से आफ्टर 10 सेकंड्स, ओके, नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट इज, यानी ये 80 क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट, पेरेंट न्यूक्लियर लेफ्ट इन टाइम 10 सेकंड्स होता है. तो कितने डिसइंटीग्रेट हुए, 20 डिसइंटीग्रेट हुए.
यानी 20 डिसइंटीग्रेट हुआ, यानी 20 में से अल्फा या एनर्जी, बीटा या एनर्जी, अल्फा बीटा दोनों या एनर्जी वो आती रही है। और ये डिसइंटीग्रेट होते रहेंगे, कब तक होते रहेंगे? ये टाइम कब तक होता रहेगा? 10 सेकेंड्स, फिर 20 सेकेंड्स, फिर 30 सेकेंड्स, ये डिसइंटीग्रेट होते होते कम होते जाएंगे। Until what? Until it attains a stable form. Students, and what is the stable form of every radioactive element? Is lead, plumb. और स्टूडेंट्स ये जो टाइम है ना इनका डिसइंटीग्रेशन का, ये जो टाइम है इनका डिसइंटीग्रेशन का can be very small or can be very large. स्टूडेंट्स ये जो सब्सटेंस है, सपोज अगर मैं सब्सटेंस 100 ग्राम्स देता हूँ, 100 ग्राम्स को 50 ग्राम्स में अगर कन्वर्ट होता है आधा, तो उसका जो टाइम इंटरवल है आधे में कन्वर्ट होना है, कैसे होगा? 100 ग्राम्स को 50 ग्राम्स कैसे होगा? सर 100 ग्राम्स को 50 ग्राम्स, यानी उसमें से आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर दो। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है? डिसइंटीग्रेशन से हो रहा है। तो अगर 100 न्यूक्लियस है, उसका 50 न्यूक्लियस हो गया या 50 एटम्स हो गया, तो कितना टाइम लगता है उसको करने के लिए? इट डिपेंड्स ऑन टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ऑल्सो। स्टूडेंट्स ये जो टाइम इंटरवल है ना, इट कैन बी इनटू मिली सेकेंड्स। ये जो टाइम है ना, it can be in milliseconds, it can be in seconds, it can be in minutes, it can be in hours, it can be in days, it can be in years. Students, C14 कार्बन 14 एक एलिमेंट है जो 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 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के हिसाब से माना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर के लिए। हम C14, हमारे अंदर भी C14 है, हमारे अंदर भी स्टूडेंट्स C14 इज प्रेजेंट। क्या क्या अगर मैं बोलूँ क्या ह्यूमन बॉडी एक्सपोज नहीं हो रहा है? स्टूडेंट्स तुम एट प्रेजेंट ऑल्सो तुम यू आर गेटिंग एक्सपोज, तुम्हारे अंदर ही रेडिएशन है। बोन्स के अंदर भी है एलिमेंट्स व्हिच स्टार्ट्स गिविंग आउट रेडिएशंस। जो फूड आइटम तुम खाते हो उसके अंदर भी C14 है, उसमें से रेडिएशंस है। इफ यू ईट नॉन वेज पीपल जो ज्यादा खाते हैं उसमें भी रेडिएशन ज्यादा है। यानी वी आर दैट इज व्हाई द हीट स्ट्रोक इज वेरी हाई इनटू ह्यूमन बॉडी। तभी जाके वो घर में इतनी दिमाग में चढ़ जाती है। Why do people say that if you eat a lot of non-veg, that's what you become slightly more aggressive in that case? एक aggression आता है। These are the reasons behind it. वैसे ही वेज फूड के अंदर भी है। अगर वेज फूड के भी अंदर भी मसाले वगैरह ज्यादा डालना शुरू कर दिए, तो उसके अंदर भी दैट्स मींस there are certain amount of C14 present into our body. We also getting exposed. अगर तुम जब भी वॉक के लिए जाते हो ना स्टूडेंट्स, गार्डन में वॉक करने के लिए तो वहां से भी C14 तुम्हारे बॉडी के अंदर आता है। यू आर गेटिंग ट्रेसेस। लेकिन वो कौन से रेडिएशन से? दोज आर द रेडिएशंस व्हिच आर गेटिंग इट एक्सपोज्ड। लेकिन स्टूडेंट्स वो बहुत ही माइनर है। उसका इफेक्ट बहुत कम है, ऑलमोस्ट वी से नेग्लिजिबल। लेकिन फिर भी इफेक्ट होता है, उसको टाइम लगता है, बहुत बड़ा टाइम लगता है। ये सारे रेडिएशंस व्हिच आर देयर और ये डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, उनको टाइम लगेगा। तो उनका टाइम जो होता है ना स्टूडेंट्स, इट कैन बी इनटू मिलीसेकंड, सेकंड्स, आवर्स, डेज। यस, फॉर एग्जांपल C14 का, अगर मैंने C14 लिया स्टूडेंट्स, 100 ग्राम लिया, 100 ग्राम का 50 ग्राम, इट टेक्स अराउंड स्टूडेंट्स 5800 ईयर्स। कार्बन को डिसइंटीग्रेट करने के लिए 100 ग्राम का 50 ग्राम करने के लिए उसको 5800 साल लगते हैं, और वो ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेट होता है बाय गिविंग आउट। तभी जाके स्टूडेंट्स, तभी जाके तुम्हें कहाँ कहाँ पे शायद तुमने सुना होगा मैमथ्स आइस के अंदर, फ्रोजन आइस के अंदर, शायद अलास्का में या वहां पे तुम्हें शायद पहले पहले इतने सालों पहले के जो एनिमल्स है जो बरीड है अंडर द आइस, जब भी उनको खोद के निकाला गया तो अभी भी उनकी स्पीशीज वैसे के वैसी है। तो पूरा डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है ना उसका, क्योंकि उसका हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है। टाइम टेकन फॉर इट टू डिसइंटीग्रेट इज वेरी लार्ज। तभी जाके वो एग्जिस्ट करते हैं वहां पे, है मरे हुए, लेकिन तुम्हें पूरा का पूरा मैमथ मिलता है उससे। दैट इज हाउ वी कंसिडर ओवर हियर। सो ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? एंटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। नाउ सपोज इफ आई हैपन टू रिमूव दिस सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्या मिलेगा मुझे? एक कांस्टेंट मिलेगा। व्हाट इज दैट कांस्टेंट वी कंसीडर? दैट इज कॉल्ड एज डीके कांस्टेंट। दैट मींस, can I say now if I happen to put forward in this case, what exactly dn is equal to, what exactly I consider will be minus lambda n into t into dt students. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? therefore can I say dn upon n into dt is equal to minus lambda into dt. This is your mathematical relation for rate of disintegration students.
अगर सपोज मैं इसको इंटीग्रेट करूं स्टूडेंट्स दोनों साइड, now see those students who are quite good in maths easily can get it. Students, what is the integration? अगर मैं दोनों तरफ में इंटीग्रेशन कर दूं स्टूडेंट्स, let us say initially the number of molecules were n0 and after time t it will be nt. Let us say that time taken initially is 0 seconds and final time is t. देखो ना यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, 0 seconds में number of molecules will be n0, number of nucleus is n0, in time t it is nt. अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, can you tell me students what is dn by n? तो तुम क्या बोलोगे? ln ln n. स्टूडेंट्स क्या होगा ये? ln n होगा कि नहीं होगा? एग्रीड? इंटीग्रेशन ऑफ dn by n. अपर लिमिट क्या है? nt. लोअर लिमिट क्या है? n0. यानी ध्यान से सुना, ln of nt minus ln of n0, ln of nt minus ln of n0, upper limit minus lower limit. लेकिन स्टूडेंट्स, what is log of a minus log of b? What is log of a minus log of b? Log of a upon b. अभी मैं देखो स्पेस कम है इसलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया स्टूडेंट्स. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ln upon n0 is equal to lambda is dk constant, integration of dt will be c. और ये डेफिनेट इंटीग्रल्स है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा. क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. कैन आई इरेज दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड नाउ? इसको इरेज कर दो स्टूडेंट्स, ये साइड पर Yes, sir. ये रख रहा हूँ मैं, इसको इरेज कर सकते. Now this is what we consider as in terms of ln nt by n0 minus lambda into t. Now can I write down in terms of exponential? इसको मैं exponential में लिख सकता हूँ, क्यों नहीं? यानी ये ln है ना, can I write down to the base of e? Yes. log of, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, इसको मैं क्या लिखूंगा मैं? nt upon n0 to the base of e is equal to minus lambda into t. अब इसको can I simply write in terms of exponential form? ये logarithmic form है to the base of e. अभी मुझे exponential form में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? nt upon n0 is equal to e raised to minus lambda into t. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? हाँ स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Okay, so n at t will be equal to n0 e raised to minus lambda t, and this becomes your formula for number of molecules left in time t is equal to number of molecules initially at 0 e raised to minus lambda into t, where lambda is a decay constant, t is a time interval of disintegration. अगर तुम इसका ग्राफ करोगे ना स्टूडेंट्स, ये ग्राफ तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ही आएगा. यानी जब भी तुम शुरुआत में देखते हो एट 0 सेकेंड स्टूडेंट से तुम्हारा n0 आता है. ध्यान से देखना ये ग्राफ, जब भी 0 सेकेंड्स होगा ना, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज n0. 100 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट. जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बढ़ता रहेगा, ग्राफ एक्सपोनेंशियल होगा स्टूडेंट्स. ये देखो, एट टाइम सपोज अगर मैंने टी ले लिया, सपोज अगर मैं कोई टाइम सिलेक्ट करता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैंने टाइम टी को आधा ले लिया, हाफ द टाइम, the number of molecules disintegrated will be equal to what? n0 by 2. Means just as the time record happens, disintegration also will go on taking place. Number of molecules left will go on decreasing. That number of molecules left which is decreasing, usko humne negative में डाला. Because nt is decreasing with time. This is what the graphical way of representation depends on to this expression. ये जो dn, अभी suppose अगर मैं इसी relation को अगर मैं देखूं students, students, if in case if I happen to consider the law, if I happen to consider students, differentiating if I happen to consider in this case, इसी equation को अगर मैं लेता हूँ students, dn by n, students, dn
by dt. Students, यही एक्सप्रेशन को मैं रीराइट लिखता हूँ. Okay, dn in time t upon dt, students, is equal to what? Minus lambda. I can consider lambda यहाँ पे जाएगा into what? Into n in time t. यही इक्वेशन को मैं वापस रीराइट लिखता हूँ स्टूडेंट्स. ये जो dn है ना स्टूडेंट्स, dn by dt is rate of disintegration. स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक्टिविटी भी बोलते हैं. यानी एट टाइम्स जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो किसी ने पूछा व्हाट इज dn by dt. Students, dn by dt is also called as activity at time t. This is disintegration at time t. This is activity at time t. Activity is number of decay per unit time. Students, number of decay per unit time. ये जो activity students, इसका unit भी है to measure. And since it was after bacterial, we also consider the unit to be in bacterial. Simply you can put forward BQ. Bacterial. Another unit is also there. Curie. We can also call as Curie. Curie is also one more unit we consider. अभी देखो relation क्या है? अगर किसी ने पूछा what is one bacterial? One bacterial का मतलब क्या है? Number of decay in given time. तो one bacterial का मतलब क्या है? One decay per second. अगर सपोज किसी ने पूछा एक्टिविटी इज वन बैक्टीरियल, उसका मतलब 1 डीके पर सेकेंड. एक डीके हो रहा है, एक न्यूक्लियस डीके हो रहा है इन टाइम 1 सेकेंड. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डीके पर सेकेंड, दैट इज बैक्टीरियल, एंड इन टर्म्स ऑफ क्यूरी. व्हाट इज द रिलेशन? 1 क्यूरी अगर मैं लेता हूं स्टूडेंट्स, जिसको मैं एब्रिविएट करता हूं सीआई. सिंस 1 क्यूरी इज 3.7 into 10 to the power of 10 डीके पर सेकेंड. And what is decay per second? 1 bacterial. So can I say 3.7 into 10 raised to 10 bacterial? This is a relation between Curie and bacterial. So जब मैंने शुरू किया, मैंने क्लियरली बोला कि रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी किसने किया था? बैक्टीरियल ने किया था, लेकिन नाम रेडियो एक्टिविटी दिया था क्यूरी ने. 1 Curie is equal to 3.7 into 10 to the power of 10 bacterial we consider. Is that clear? Friends, is this part clear to all of you? Yes, sir. Now when I speak about for half-life, students, half-life है क्या यहाँ पे? ये देखो, time taken for the element to disintegrate half its original is called as the half-life of that radioactive sample. Let us go for an expression for that. So it's half-life for radioactive material. It is a time taken by a radioactive sample. The answer is no, students. It's a time taken by a radioactive sample to disintegrate half its original mass. अभी जैसे मैंने बोला था for carbon C14, मैंने एक नियर अबाउट वैल्यू दिया स्टूडेंट्स, 5800 ईयर्स. कहाँ पे तुम्हें शायद दिखेगा 5760, 5780, 5800. मैंने 5800 कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से दिया. तो स्टूडेंट्स, अगर मैंने कुछ C14 या कार्बन C14 में लिया है, उसका आधा हो जाता है इन 5800 ईयर्स, उसका हाफ लाइफ है. यानी हाफ लाइफ का मतलब क्या है? टाइम टेकन बाय अ रेडियोएक्टिव सैंपल टू डिसइंटीग्रेट हाफ इट्स ओरिजिनल मास. अगर सपोज मैंने बोला हाफ इट्स ओरिजिनल मास, उसका मतलब क्या? व्हाट इज मास ऑफ एन एलिमेंट? व्हाट इज द मास ऑफ एन एलिमेंट? सर, इट डिपेंड्स ऑन टू द मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. यानी वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है. तो हमें न्यूक्लियस के बारे में, डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात करना है यहाँ पे. half the initial we consider. Now if I happen to consider for the expressions, when suppose if I say, हमारा इक्वेशन क्या था स्टूडेंट्स? हमारा इक्वेशन था number of molecules at time t left, number of molecules initially,
e रेज टू माइनस लैम्बडा इंटू टी, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन था, इससे हमें ग्राफ भी मिल रहा था। अब ये सोचो स्टूडेंट्स, अगर सपोज मैंने टाइम टी को टी हाफ ले लिया और ये क्या है, हाफ लाइफ टाइम टी, एग्रीगेट। अगर मैंने टी को टी हाफ ले लिया तो स्टूडेंट्स मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, my number of molecules at time t becomes half the original क्या थे, n0 थे ना। जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे t reaches to t हाफ, मेरा n क्या बन जाएगा, n0/2। अभी लेफ्ट कितना होगा स्टूडेंट्स, इतने डिसइंटीग्रेट होंगे तो बचे कितने, n0/2 हुआ ना। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? nt का मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट इन टाइम t हाफ, तो n0/2। स्टूडेंट्स 100 न्यूक्लियस थे, टाइम 0 सेकेंड्स था, फिर टाइम t हाफ हुआ तो किचन में कितने डिसइंटीग्रेट हुए, आधे। तो बचे कितने, आधे ही बचे ना। कितने टाइम में, टी हाफ में। क्या ये मैटर क्लियर हुआ सबको स्टूडेंट्स? तो ही तुम्हें एक्सप्रेशन मिलेगा हाफ लाइफ का, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट। तो अनम्यूट करके हाँ बोलो ना, टेस्ट करके तो। ओके, आंसर इसको ना लोगो भैया फर्दर। अगर सपोज मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं वैल्यूज में स्टूडेंट्स, देखो ना, एन टी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, n0/2। हाँ सर, ये तो n0 है ही। ये क्या होगा, e रेज टू माइनस लैम्बडा। टी की जगह में क्या लिखूंगा सर, टी हाफ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। n0 गेट्स कैंसिल। ये क्या होगा, 2 रेज टू -1 इज इक्वल टू e रेज टू माइनस लैम्बडा टी हाफ। देयरफॉर कहने से स्टूडेंट्स, अगर मैं इन्वर्टेड कर दूं या रेसिप्रोकल ले लूं तो स्टूडेंट सिंपली कहने से e रेज टू लैम्बडा टी हाफ इज इक्वल टू 2। कैन आई राइट ऑन दिस इन टर्म्स ऑफ योर टी हाफ की जगह पे, तो व्हाट एग्जैक्टली टी हाफ विल बी इक्वल टू, टी हाफ कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ये क्या होगा ln में। कैन आई राइट ऑन दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम। अभी ध्यान से देखना, ये एक्सप्रेशन देखो एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, ये सबको पता है, एग्रीड। तो कहने से log of 8 to the base of 2 is equal to 3। हाँ स्टूडेंट्स, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, log of 8 to the base of 2 is equal to 3। तो वैसे ही ध्यान से देखना, ये जो e है ना, ये तुम्हारा 2 आ गया, ये है, ये तुम्हारा पावर होगा, और ये 2 है। कैन आई राइट ऑन दिस इन टर्म्स ऑफ log, यस। तो अगर मैं लिखूं log, ये 2 होगा, एग्रीड, to the base of e is equal to क्या होगा, लैम्बडा इंटू टी हाफ। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये इसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया, लुकिंग एट दिस। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको, हाँ या ना? तो अभी देखो, लैम्बडा इंटू टी रेज टू हाफ इज इक्वल टू log of 2 to the base of 2। व्हाट इज log of 2 to the base of 2? ln2। तभी जाके तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखो ना स्टूडेंट्स, तो टी हाफ क्या लिखा है, ln2 बाय लैम्बडा लिखा है। ln2 को कैसे लिखते हैं, log of 2 to the base of e अपॉन लैम्बडा लिखा है। log of 2 to the base of e इज एक्सपोनेंशियल, उसको नेचुरल लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करोगे, 2.303 log of 2 to the base of 10 lambda। So what is log of 2 to the base of 10? What is log of 2 to the base of 10? What is log of 2 to the base of 10? तो क्या लिखोगे, 2.303 into 0.3010। स्टूडेंट्स अगर तुम्हारे पास में लॉग बुक्स अभी है तो तुरंत देखो log of 2 नेचुरल लॉगरिथम्स में, क्योंकि जो भी नेचुरल लॉगरिथम तुम्हारे लॉग बुक्स में है ना, सारे टू द बेस ऑफ 10 ही है। तो ये 0.303 है अपॉन लैम्बडा। अभी देखो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो गया, therefore half life period is 0.693 अपॉन लैम्बडा। ये तुम्हारा फॉर्मूला हुआ टी हाफ का। यानी स्टूडेंट्स
ये कंसेप्ट है क्या? हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बता रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या है? टाइम टेकन बाय द एलिमेंट टू डिसइंटीग्रेट हाफ द ओरिजिनल मास। तो टी हाफ किसके ऊपर डिपेंड होगा? डी के कांस्टेंट के ऊपर होगा। दैट डिपेंड्स ऑन टू द मटेरियल, दैट इज 0.693 अपन लैम्बडा। ये तुम्हारा है लैम्बडा। डी के कांस्टेंट अगर किसी एलिमेंट का मिल जाता है तो तुम्हें टी हाफ मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? उसी को एक्सप्रेशन लाने के लिए मैंने क्या किया, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन पहले से लिया मैंने। फिर मैंने बोला कि अगर सपोज जीरो जीरो न्यूक्लियस है, सॉरी इन टाइम 0 सेकेंड्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज इन 0। अगर कुछ टाइम t के बाद में होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी nt। ध्यान से सुना, लेफ्ट विल बी nt। अगर सपोज मैंने बोला कि नाउ द टाइम रीचेस टू t हाफ, ध्यान से देखना, टाइम इज रीचिंग टू t हाफ, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल डिसइंटीग्रेट? तो डिसइंटीग्रेशन इज n0/2। निकल गए, डिसइंटीग्रेट हो गए। बच्चे कितने? इतने तो बच्चे होंगे ना, वो मैंने लिखा है। nt is equal to n0/2। nt को मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, n0 वैसे रखा इन दैट केस, ये कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल में आया। इस एक्सपोनेंशियल को मैंने लोगैरिथमिक रखा। ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये एक सिंपल एग्जांपल दे दिया। अगर 2 क्यूब 8 है तो log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 कैन बी रिटन एज 3। ये तो सबको पता होना चाहिए लोगैरिथम्स में। तो यही चीज मैंने क्या लिखा, लॉग में लिख दिया। जैसे मैंने log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ e लिख दिया तो कैन आई रन ln2? व्हाई नॉट? ln2 को मैंने log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ e लिखा, log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ 10 लिया, log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ 10 is 0.3010, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Can I erase the students? क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ students? Yes, sir. इसकी जब भी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी। तुम्हारा फॉर्मूला क्या मालूम है? nt अपॉन n0 1/2 रेज़ टू पावर ऑफ n। स्टूडेंट्स ये एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। इसी को अभी मैं लिखता हूँ, nt अपॉन n0 1/2 रेज़ टू पावर ऑफ n, where n is a half life। ये डायरेक्ट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, you can use this। ये क्या है? number of molecules left after differentiation, this is the total number of molecules। 1/2 n क्या है? It's a half time taken। Am I getting it? सपोज अगर मैंने बोला इट टेक्स हाफ ऑफ इट, यानी 2 स्क्वायर या 2 days या 10 days या 18, यानी वो पावर होगा उसके हिसाब से। You can get your answer accordingly। This is a direct relation। Many problems can be easily solved by this expression। और ये जो इक्वेशन दिया उससे तुम्हें क्या मिलेगा? इससे तुम्हें ग्राफ मिलेगा स्टूडेंट्स, ग्राफ एक्सपोनेंशियल मिलेगा। और ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला जहाँ पे तुम्हें हमेशा किसी एलिमेंट का डी के कॉन्स्टेंट देते हैं और तुम्हें टी हाफ निकालने के लिए बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हें एक्सपोनेंशियल से लोगैरिथम, नेचुरल लोगैरिथम में कैसे लिखना है, नेचुरल लोगैरिथम को एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखना है, वो क्लियर होना जरूरी है। Okay, students. Now this was your end of your radioactive part of it, students. Now I'll go for your so-called your photoelectric students. The concept related to a dual nature of light students. अगर dual nature of light के अंदर जाओगे students, what exactly you consider? मैंने क्या बोला था? Light at times behaves like a particle and light at times behaves like a wave also, students. So it can behave like a wave at times and it can behave like a particle at times we consider. And that's what we call as dual nature we consider, students. अभी dual nature के लिए तुम्हें सबसे पहला effect तुम्हें पता होना चाहिए। The first effect what we consider is your photoelectric effect, students. Einstein's photoelectric effect। यानी हम पार्टिकल नेचर का एक सिंपल रिलेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, एंड दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट एग्जैक्टली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या स्टूडेंट्स? व्हाट एग्जैक्टली इट मींस? स्टूडेंट्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये है कि सपोज अगर मैंने कोई इंसिडेंट एनर्जी ली, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, ओके? नाउ वी आर गोइंग विद रिस्पेक्ट टू योर डुअल नेचर।
ऑफ लाइट एंड रेडिएशन, ये तुम्हारा टॉपिक है स्टूडेंट्स। अच्छा ऑलरेडी स्टार्टेड स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो हम क्या यूज कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, किसका? पार्टिकल नेचर का। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का हम एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? डोंट गो ऑन टू द वर्ड प्लीज। इट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। ये एक पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। अभी ये है क्या स्टूडेंट्स? व्हाट इज दिस? To understand students, listen carefully. Albert Einstein ने बताया था students. Albert Einstein said it, that is, we consider that is at times wave behaves like a particle also. तो हम पार्टिकल नेचर के ऊपर जा रहे हैं। डिब्रॉगली ने, जो हम लोग ने किया था लास्ट लेक्चर में, हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन किया था, अगर तुम्हें याद हो तो L is equal to NH/2 pi, वो डिब्रॉगली के हिसाब से आया था। क्योंकि आइंस्टाइन ने बोला कि पार्टिकल दैट इज अ वेव consist of particles or can show certain properties related to particles, then even particles can also behave by like waves. वो किसने बोला था? de Broglie ने बोला था। यहाँ पे हम आइंस्टाइन के हिसाब से जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि लाइट हैज डुअल नेचर। यहाँ पे लाइट का हम पार्टिकल नेचर ले रहे हैं। आइंस्टाइन ने पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट हमें बताया, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब, फोटो का मतलब फोटोन, अनचार्ज्ड पार्टिकल associated with electromagnetic, जिसका रेस्ट मास क्या है स्टूडेंट्स? इसका रेस्ट मास है 0। ध्यान से सुनना, इसका रेस्ट मास is always equal to 0. It has which mass? It has relativistic. We consider. यहाँ पे अगर किसी ने पूछा what exactly wavelength of photon we consider is, so it's h/p. यानी स्टूडेंट्स वेवलेंथ ये क्या है? वेवलेंथ ऑफ फोटोन स्टूडेंट्स, वेवलेंथ ऑफ फोटोन वी कंसीडर। ये पार्टिकल, ये वेव नेचर के बारे में बताता है स्टूडेंट्स। लैम्बडा किसके बारे में बताता है? ऑफ कोर्स लैम्बडा कहाँ पे पढ़ा तुम लोग ने? साउंड वेव्स, लाइट वेव्स। तो ये बताता है क्या? ये वेव का कंसेप्ट बताता है। मोमेंटम किसका कंसेप्ट बताता है? पार्टिकल का कंसेप्ट बताता है। ये देखो एक इंटरलिंक हो रहा है वेव और पार्टिकल के बीच में, दैट्स व्हाट। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया जो मैंने बताया था डायरेक्टली? ये कहाँ से आया? हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? E=mc² यूज किया था। अगर तुम्हें मालूम हो तो, अगर लेक्चर में बैठे हो तो E=h न्यू लिया था, hc/लैम्बडा ले लिया था, उससे हमें ये फॉर्मूला मिला था। ये है लैम्बडा इज वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वी कंसीडर h/p। नाउ ही पिक्ड अप दिस फोटोन। आइंस्टाइन ने क्या किया? इस फोटोन को लेते हुए उसने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स, वी नीड टू गो फॉर अ सूटेबल सब्सटेंस, अ सूटेबल एमिटर। स्टूडेंट्स अगर मैं सपोज मैं तुम्हें एक एमिटर के बारे में बात करूं, स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए सपोज अगर मैं एमिटर के बारे में बात करूं, एमिटर का मतलब क्या? जहां से इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होते हैं, एमिटर। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर सपोज मैं तुम्हें चॉइस दिया, अल्कलाइन मेटल्स दिया और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना? अल्कलाइन मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो तुम बताओ स्टूडेंट्स, कौन सा एलिमेंट has an ability, which element has an ability to knock out the electrons more easier when some external energy is falling onto it? When some external energy is falling onto it, will alkaline metal या alkaline earth metal? Alkali metal. यानी alkali metal के अंदर you have one free electrons in the outermost orbit। यानी आइंस्टाइन ने क्या किया मालूम? वो एलिमेंट्स को पकड़ा और उसको लेते हुए उसने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। अभी ध्यान से सुनना, इसमें क्या होगा मालूम है? ध्यान से सुनना। सी he started working on to the cost of input was less, output was more। स्टूडेंट्स ये कुछ एक नया कंसेप्ट है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नया कंसेप्ट, और फिर उसको डेली प्रैक्टिस में डाल दिया, उसको एप्लीकेशंस में डाल दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एप्लीकेशंस में डाल दिया।
तो उस एप्लीकेशंस के लिए हमारा जो एलिमेंट है, बी इट अल्काइल मेटल, अगर सपोज मैं अल्काइल अर्थ मेटल लेता, स्टूडेंट्स अगर मैं अल्काइल अर्थ मेटल लेता, तो वहां से भी तुम इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर सकते थे, लेकिन उसके लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए, बाहर से एनर्जेटिक फोटॉन्स चाहिए। यहाँ पे आइंस्टाइन ने क्या किया मालूम है? यहाँ पे आइंस्टाइन के पास में अवेलेबिलिटी कौन सी फोटॉन्स की थी? तो आइंस्टाइन ने सोचा यार मेरे पास तो अवेलेबल फोटॉन्स तो विजिबल लाइट है। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, सी हाउ एग्जैक्टली रिसर्च पीपल थिंक। आइंस्टाइन सोचता था कैसे? क्योंकि वो बोला कि यार मेरे हाथ में तो विजिबल लाइट है भाई, विजिबल लाइट को तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन विजिबल के इस तरफ गया तो यार यहाँ पे तो मेरे पास अल्ट्रावायलेट आएगा, अल्ट्रावायलेट रेस आएंगे, यहाँ पे मेरे पास में एक्स रेज आ जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास में गामा रेज आ जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास में कॉस्मिक रेज आ जाएंगे। इस तरफ गया, आई गेट इट, विबग्योर, विजिबल का मतलब क्या होगा? विबग्योर आया ना, ये विजिबल लाइट है, विजिबल स्पेक्ट्रम। इस तरफ गया तो मेरे पास में इंफ्रारेड रेडिएशन होगा, आई गेट इट, इंफ्रारेड रेडिएशन भी कंसिडर, माइक्रोवेव भी कंसिडर, रेडियो वेव्स, टीवी वेव्स, ये सारे होंगे। तो ये क्या है? तो ये सारे लॉन्गर इन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी शॉर्टर, ये है शॉर्टर इन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी लॉन्गर। स्टूडेंट्स यानी ये भी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है स्टूडेंट्स, लेकिन ये हाई एनर्जेटिक है। दिस हैज लो एनर्जी, दिस हैज मॉडरेट एनर्जी। आइंस्टाइन को जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब भी इन्वेंट किया उसने, जब भी उसको एक्सप्लेनेशन में डाला या उसका एक्सपेरिमेंटल वे ऑफ अप्रोच डाला, तो उसके हाथ में ये था स्टूडेंट्स, विजिबल लाइट इजीली अवेलेबल है, यानी उसका कॉस्ट ऑफ इनपुट, ध्यान से सुना, ये कुछ इन्वेंट कर रहा था आइंस्टाइन, कॉस्ट ऑफ इनपुट कम है। अगर वो इस तरफ जाता या इस तरफ जाता तो उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ता, पहले ये अल्ट्रावायलेट एक्सरेज को उसको ऑब्टेन करना पड़ता और फिर उसको यूटिलाइज करना। तो जो स्टूडेंट अभी सुन रहे हैं मुझे, वो बोलेगा सर उसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि अगर आपने लिथियम लिया, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया, तो ये एलिमेंट्स के लिए आपको विजिबल लाइट अगर इसके ऊपर आप डालोगे तो वो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकेगा अच्छी तरह से? क्यों नहीं, क्योंकि ये अल्कला है, एंड जनरली वी गो फॉर ऑक्साइड्स ऑफ अल्कला मेटल, वी गो फॉर व्हाट, ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाई मेटल। लेकिन अगर मैं जिंक लेता हूं, सम अदर एलिमेंट्स, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? वहां से अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करना है तो मुझे हाई एनर्जेटिक फोटोन चाहिए। स्टूडेंट्स ये इससे भी तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, इससे भी तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। अगर ये रेडिएशन, ध्यान से सुना, अगर ये रेडिएशन में लिथियम सोडियम पोटेशियम के ऊपर डालूंगा, तो स्टूडेंट्स बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के अलावा, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के अलावा अंदर के इलेक्ट्रॉन्स भी नॉकआउट होंगे। मुझे वो नहीं चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना है। मुझे सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करना है। जो इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, उनको ही इजेक्ट करना है। तो उसके लिए मुझे मॉडरेट एनर्जी चाहिए, मॉडरेट एनर्जी मुझे विजिबल स्पेक्ट्रम देगी। अगर अगर मैंने ऑक्साइड्स ऑफ लिथियम ले लिया, ध्यान से सुनना, ऑक्साइड ऑफ सोडियम ले लिया, ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम ले लिया, और तुमने बोला सर यूवी रेज स्ट्राइक करो ना उसके ऊपर, यूवी रेज डालो उसके ऊपर, आपको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये अच्छा करेगा ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। लेकिन मेरे भाई अगर ये मैंने डाल दिया तो ये यूवी रेज तो और एटम के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, क्योंकि इनके पास में हाई एनर्जी है, वो तो और अंदर तक जाएंगे, तो अंदर के शेल्स को भी इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट कर देंगे, और अंदर के शेल्स को नॉकआउट करना शुरू कर दिया तो अंदर भी एक ट्रांजिशन क्रिएट होगा।
So that's why we do not go for this. ये suitable elements के लिए चले जाते हैं, जिनका atomic number is slightly more stronger in that case. यहाँ पे हम oxides के लिए लेते हैं. तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये visible light है. Visible light के लिए अगर किसी ने पूछा what is visible spectrum means? Visible spectrum means violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. ये लाइट हम किसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे? ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल. एग्जांपल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. ध्यान से सुनना, वायलेट के लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्या लिखा है? अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज. ये सारे शॉर्टर वेवलेंथ, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कॉस्मिक रेज, सोलर फ्लेयर्स. उसके बाद में आता है गामा, सबसे एनर्जेटिक कॉस्मिक है. उसके बाद में गामा की एनर्जी ज्यादा है. उसके बाद में एक्सरेज की एनर्जी. उसके बाद में अल्ट्रा वायलेट. फॉर एग्जाम्पल यू नो, कुछ बच्चे जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं, शायद उनके अंदर कुछ डेफिशिएंसी होती है न्यूली बॉर्न बेबीज, उनको ब्लू लाइट में लगते हैं स्टूडेंट्स. ब्लू लाइट एंड दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस. अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का पोजीशन किसके साथ में होता है? अलॉन्ग विद वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू. उसके साथ में अल्ट्रा वायलेट का पोजीशन होता है. रेड लाइट के साथ में क्या होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन, हीट वेव्स. गर्माहट जो मिलती है ना, सपोज यू आर वॉकिंग आउट इन द सन, और तुम्हारे सर पे अगर सपोज तुमने सर के ऊपर हाथ रख दिया और तुम्हारा सर गर्म होता है, तो किसकी वजह से? इंफ्रा रेडिएशन जो रेड लाइट के साथ में आ रहा है. माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स. तुम रेडियो एफएम सुनते हो, रेडियो मिर्ची, रेडियो चीकू, रेडियो पपैया, 91.1, 92.7, ये सब सुनते हो तो वो रेडियो वेव्स है. टेलीविजन वेव्स, टीवी वेव्स, जो तुम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो, वो सारे हर्ट्ज में आता है, फ्रीक्वेंसीज में आते हैं. ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. हमें कौन सा लेना है? विजिबल लाइट. विजिबल लाइट में भी अगर तुम देखोगे ना, किसमें ज्यादा एनर्जी है? विजिबल लाइट में भी किसमें ज्यादा एनर्जी है? वायलेट का एनर्जी स्ट्रॉन्गर देन रेड. देखो ना, वायलेट किस तरफ है सर? वायलेट शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ ज्यादा है, और रेड लॉन्गर वेवलेंथ. अगर तुम उसका तुम अगर थोड़ा सा एस्टिमेशन के हिसाब से देखोगे, तो वायलेट का वेवलेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली 4000 एंगस्ट्रॉम्स. स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज के लिए हम लोग पकड़ रहे हैं. 4000 एंगस्ट्रॉम्स. angstrom, 10⁻⁻10 meter. Red is 8000 angstrom, around 7800, लेकिन हम लोग 8000 लेते for simple MCQs. जिसका फ्रीक्वेंसी छोटा रहता है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी दे आर हाई फ्रीक्वेंसी एंड दे लो फ्रीक्वेंसी. यानी अगर ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर सपोज मैंने लिया एलिमेंट सोडियम, ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम. ध्यान से देखना, ऑक्साइड ऑफ सोडियम लिया और दो स्टूडेंट्स इसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट. ध्यान से सुनना, एक ने स्ट्राइक किया वायलेट लाइट, एक ने स्ट्राइक किया रेड लाइट. स्टूडेंट्स, कहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छा रहेगा? वायलेट, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा है, लैम्बडा शॉर्टर है, हाई फ्रीक्वेंसीज है, मोर एनर्जी भी कंसीडर. E is equal to h nu. आ गया ना फोटोन, है ना? यानी एनर्जी ऑफ फोटोन, स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ फोटोन, लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या energy of photon is inversely proportional to wavelength. Shorter wavelength has more energy, shorter wavelength has more energy, longer wavelength has less energy. क्या ये क्लियर हुआ सबसे पहले? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आएगा. Are you getting it? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक सिंपल एग्जांपल है स्टूडेंट्स. फॉर एग्जांपल अगर तुम देखते हो, तुम इंफ्रा रेडिएशंस भी ले सकते हो. तुम इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दिया, सर्किट कंप्लीट कर सकते हो. एक सिंपल एग्जांपल इसका मैं लेता हूं, स्टूडेंट ध्यान से सुनना. फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच हो रहा है स्टूडेंट्स, क्रिकेट मैच हो रहा है, एंड थिंक एज ऑफ द क्रिकेट मैच इज टेकिंग प्लेस इन इंग्लैंड. ओके, लॉर्ड्स के अंदर, लॉर्ड्स ग्राउंड के अंदर इंडिया और इंग्लैंड का मैच है. ओके, और वहाँ पे अपने इंडियन बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो हालत है अभी T20 की. ओके, वी हैव लॉस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, लॉस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड. सो उनकी जो हालत है वो हालत है ना, बहुत गंदी तरीके से हार रहे हैं ना. ओके, 10 विकेट. हाँ क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टोटली डिफरेंट एग्जांपल. ओके स्टूडेंट्स, एक सपोज अगर इंडियन टीम अपना लॉर्ड्स चले गए इंग्लैंड में खेलने के लिए, ओके, और टेस्ट मैच खेलने गए. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स,
तो एट टाइम्स इंडियन बैट्समैन कंप्लेन करते हैं कि हमें बॉल दिखाई नहीं दे रहा है, यानी दे आस्क फॉर व्हाट बैड लाइट। शायद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग इट। ओके, यू कैन कॉल, यानी तुम अपना गेम खत्म करने के लिए तुम अंपायर को कंप्लेन कर सकते हो कि बैड लाइट है, हमें बॉल दिखाई नहीं दे रही। ओके, तो क्या करते हैं अंपायर? अंपायर बैट्समैन पर बिलीव करते नहीं करते? इंडियन बैट्समैन ने बोला कि हमें बॉल दिखाई नहीं दे रहा है, गेम वाइंड अप करो, डे एंड कर दो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 7 डाउन है। अगर 3 विकेट और निकल गई और कल का पूरा दिन बाकी है करके, अगर आज ही विकेट हम लोग तो हार जाएंगे करके, तो वो बैड लाइट का कंप्लेन करते। तो अंपायर उनका भरोसा नहीं करते। दे आस्क फॉर अ फोटो सेल, लक्स मीटर, एक डिवाइस है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे चलता है। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, वो अंपायर एक डिवाइस लेके आता है, छोटा सा हैंडी डिवाइस होता है उसके यानी क्या मालूम है स्टूडेंट्स? वो ऐसा वाला डिवाइस, देखिए हम पुटिंग इट ओवर हियर स्टूडेंट्स। ये एक सर्कल है, यहाँ पे तुम्हारा कॉन्केव रिफ्लेक्टर है और यहाँ पे तुम्हारा गैल्वेनोमीटर, ये तुम्हारा एमिटर है स्टूडेंट्स। ये तुम्हारा एमिटर है और ये कलेक्टर है। यानी क्या कहते हैं मालूम है? ये लक्स मीटर को पिच के सेंटर में आके ऐसे ऊपर हाई हाई आप हाई नाप जो रखते हैं, तो होता क्या है, लाइट वेव्स स्ट्राइक होता है एमिटर पे स्टूडेंट्स। बाहर की जो लाइट आती है ना, वो एमिटर पे स्ट्राइक होगी। जैसे एमिटर पे स्ट्राइक होती है, यानी क्या स्ट्राइक होता है? फोटॉन्स। फोटॉन्स किसको स्ट्राइक होता है? तुम्हारा एमिटर क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ अल्काइल मेटल। तो जो इंटेंसिटी से लाइट स्ट्राइक होगी, उसी इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होंगे वहां से, क्योंकि उनको एनर्जी मिली है और इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। जैसे वो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, एक सामने प्लैटिनियम पॉइंट या सिल्वर पॉइंट रखा है, एंड दैट्स अ बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल। तो तुरंत वो इलेक्ट्रॉन को ग्रैब कर लेता है और जैसे इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो एक सर्किट कंप्लीट कर देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का सर्किट कंप्लीट हुआ, कन्वेंशनल करंट सेटअप हुआ और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सेल कनेक्ट नहीं किया है, हेलो, मैंने यहाँ पे बैटरी वगैरह कुछ कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा है। अरे ये हुआ क्या? अरे ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यू टू फोटोन, डिड यू जनरेटेड सम करंट? यस। अगर सपोज ज्यादा लाइट गिरेगी एमिटर के ऊपर ज्यादा लाइट गिरेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे उस सिल्वर पॉइंट प्लैटिनम पॉइंट पे और सर्किट कंप्लीट होगा। उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन ये गैल्वेनोमीटर दिखाएगा स्टूडेंट्स। और गैल्वेनोमीटर का जो कैलिब्रेशन है ना स्टूडेंट्स, वो इंटेंसिटी के हिसाब से कैलिब्रेट किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू अ नॉर्मल ह्यूमन आई। कि अगर तुम्हारा पॉइंटर यहाँ तक चला जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट, तो सफिशिएंट है, बॉल दिखाई देगा। लेकिन अगर तुम्हारा तुम्हारा पॉइंटर बहुत कम डिफ्लेक्ट होता है, उसका मतलब लाइट इज नॉट सफिशिएंट टू कंटिन्यू द गेम। तो ये डिवाइस से उनको पता चलता है कि क्या गेम को कंटिन्यू रखना है या गेम को बंद करना है। दे डोंट बिलीव द बैट्समैन एट दैट टाइम। और ये किसके लिए है? फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए। अभी सपोज तुम्हारा बैट्समैन चश्मे पहनने वाला है, तो तुम्हारा प्रॉब्लम ना, तुम्हारे टीम के अंदर उसको लेना नहीं था। किसने बोला लेने के लिए? चश्मे बगैर को लो ना। दैट और इज कोई वाई है? क्रिकेट के अंदर सिलेक्शन भी होता है ना, तो पीपल हैव बीन सिलेक्टिंग विद लेस अमाउंट ऑफ स्पेक्स। जिसके स्पेक्टिकल्स नहीं होते उनका सिलेक्शन तुरंत होता है एज कंपेयर टू स्पेक्टिकल्स का। ये भी ध्यान में रखो। यानी अगर तुम फाउंड ऑफ क्रिकेट हो ना, तो तुम्हें आंख को भी प्रिजर्व करने की जरूरत है। क्या ये समझ में आया स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? अरे यार हाँ या ना तो बोलो, देख तेरे संसार की यस। क्या हो गई तो। क्या मैं इसको एरेज कर सकता हूँ अभी? ओके, फिर द चैप्टर इज वेरी थियोरेटिकल। इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला, बस एक ही फॉर्मूला को ध्यान में दोगे सब कुछ आ जाएगा। ग्राफ भी बहुत ईजी है स्टूडेंट्स इसके। ओके, इट्स मोर थियोरेटिकल। ये तुम अगर बेसिक समझ गए ना, यू बी एबल टू क्रैक क्वेश्चंस इजीली स्टूडेंट्स। क्या एरेज कर दूं मैं इसको अभी? हाँ, हाँ। ओके। Now let us go for Einstein's expression for photoelectric effect. अभी आइंस्टाइन ने अपना एक इक्वेशन दी है, ओके, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो वो कैसा है, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। अभी आइंस्टाइन एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल वे ऑफ अप्रोच दे दिया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो वो है क्या? Tommy, hope you're getting it. Tommy, I know about it.
Hitansh, Chirag, Naitik, Muzaffar, Shaili was the one who was there inside the classroom, who was answering. There is Himanshu. There is Mizaga, and hardly no people. Means hardly the people reply. Students, please, अगर नहीं समझ में आता है तो do unmute and ask. विधान देखो स्टूडेंट्स, अभी हमें ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, ये तुम्हारा एक मेटल एमिटर है, नहीं करेंगे। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये सेल्स है, ये पर्टिकुलर सेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, नहीं करेंगे ना। सपोज अगर मैंने बाहर से कोई फोटोन स्ट्राइक किया, और फोटोन कौन सी लाइट की है? विजिबल, and it can be violet, indigo, visible light. If I make a visible light to strike onto it, so can I say this is photon striking onto it? जैसे ये फोटोन स्ट्राइक कर रहा है स्टूडेंट्स, जैसे ये फोटोन, ये जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करेगा स्टूडेंट्स, तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेगा एनर्जी। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन को कौन, हु इज होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन? तुम क्या बोलोगे सर, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो होल्ड करके रख रहा है इलेक्ट्रॉन को। लेकिन जैसे ये एनर्जी बाहर से आएगी तो ये एनर्जी क्या होगी सर? एनर्जी, ध्यान से सुनना, इट्स एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से सुनना, अभी सारे फॉर्मूला देख रहा हूं मैं। सर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन का फॉर्मूला h इंटू न्यू, ये क्या होगा? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। क्या इसको तुम वेवलेंथ में लिख सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं? कैन आई से इट्स h इंटू c अपॉन लैम्बडा इंसिडेंट। ये जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है वो किस में मेजर होगी सर? एनर्जी तो ऑलवेज इन जूल, लेकिन हम एटॉमिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एटॉमिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसके पहले हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, फोटॉन्स, सॉरी न्यूक्लियस के बारे में स्टूडेंट्स। वहां पे अगर न्यूक्लियर एनर्जी होगा ना, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड इन MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन विल ट्राई टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन इन दैट केस, तो इसका जो यूनिट होगा स्टूडेंट्स, दैट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which is in EV. 1 electron volt corresponds to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। यानी एट टाइम्स जानबूझ के वो ईवी में देते इंसिडेंट एनर्जी, दिल से दैट एन इंसिडेंट लाइट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी 1.2 ईवी, तो उतना एनर्जी 1.2 ईवी का मतलब 1.2 into 1.6 into 10 minus 19 जूल। अभी ये यहाँ पे गिरा हुआ है, ये इसके ऊपर स्ट्राइक हो रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, ये इंसिडेंट एनर्जी। मुझे बताओ जब ये एनर्जी इसके ऊपर स्ट्राइक होगी तो होगा क्या सर? इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करने के टाइम पर उसके बाद पार्ट ऑफ द एनर्जी स्टूडेंट्स, जो एनर्जी अब्सॉर्ब किया है, एनर्जी अब्सॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन partially used to perform work against electrostatic force। ध्यान से सुनना, जो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो partially is used to perform work against electrostatic force, जिसको हम नाम देते हैं वर्क फंक्शन, जिसको हम लेते हैं W0 या φ0। स्टूडेंट्स है ना सिंपल? अरे हाँ यार, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब ये एनर्जी गिरे तो वो कुछ तो काम करेगा ना। ये जो फोर्स है, इसको उसको तोड़ना है, ये इलेक्ट्रॉन को, ये फोर्स को तोड़ना है। तो part of the energy is used, partially the energy is used to perform work against the electrostatic force. What is the formula for work function? What's the formula for work function? The formula for work function is equal to what? Work function, aggregate, which is equal to φ0. इसको हम बोलते हैं threshold energy. And the formula for this is equal to h into nu0 hc upon lambda 0. And that simply depends on what? Depends
on nature of emitter. क्या ये क्लियर हुआ? Work function depends on the nature of it. Yani out of the total energy absorbed by the electrons, partially it is used for this, partially is used for the electron to perform work. Against what? Against the electrostatic force of attraction. इसको हम क्या देते हैं, क्या नाम देते हैं? इसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन या तो W0 लिखो या तो phi0. What is the other name? Threshold energy. थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या है? The minimum amount of energy required in order to free the electron from the atom of an element. Since ये सोचो कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है, वो एक धागे से बांधा गया है. ये सोचो ना, सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट. एक धागे से बांधा गया है टू द न्यूक्लियस, थ्रेश्ड. बाहर से जो एनर्जी उसको मिलेगी, वो एनर्जी क्या होना चाहिए? वो एनर्जी इस एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, तो ही वो बाहर निकलेगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं. अरे हाँ सर, ये तो सही है. अगर इंसिडेंट एनर्जी मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही नहीं आएगा. स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्टूडेंट्स, Yes, sir. अगर किसी ने पूछा कंडीशन, ध्यान से सुना, अगर किसी ने पूछा कंडीशन फॉर PEE, please don't go on to the word photoelectric. What is the first condition of photoelectric effect? तो बोले हाँ सर, your incident energy should be greater than the work function of the metal emitter. Work function का मतलब क्या होगा? Threshold energy. तो ही तुम्हारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा. अगर तुम्हारी इंसिडेंट एनर्जी से कम ही होगी तो नहीं होगा. Now let us assume that my incident energy is greater. तो कुछ एनर्जी वो ऑब्जॉर्व करेगा अपने आप को तोड़ने के लिए. तोड़ने के बाद में क्या होगा? वो बाहर आ जाएगा. It's going to come out. It's going to come out with what? It's going to come out with certain kinetic energy. That means energy kinetic. So can I say partially energy is used to overcome the electrostatic force. The rest of energy is in the form of kinetic energy of emitted electron. An energy kinetic form. At times you can write simply K, EK, and that is equal to half and velocity of ejection. This answer is always measured in, you can say either in joule or in EV. इसको भी तुम EV में ले सकते हो या joule में भी ले सकते हो. समझा? Partially is used for this, and the rest of energy is used in the form of what? Kinetic energy of emitted electron. That is given by what formula? Half m velocity of electron, which is also measured in joule or it's measured in EV. क्या ये clear हुआ students? Students, क्या ये clear हुआ? Yes. Clear हुआ. अगर सपोज बोला सर मैंने अभी, चलो मुझे इंसिडेंट एनर्जी ग्रेड नहीं चाहिए. स्टूडेंट्स, अगर किसी ने बोला कि सर मेरा जो इंसिडेंट एनर्जी है इक्वल टू वर्क फंक्शन ही दे रहा हूँ मैं, चलो, और वर्क फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड होता है? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एमिटर. मटेरियल के ऊपर डिपेंड होगा. अगर देखो मैं तुम्हें चॉइस देता हूँ स्टूडेंट्स, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. तीन स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट है, उसके सामने मैंने लिथियम एमिटर डाला है, सोडियम एमिटर डाला है, पोटेशियम. ध्यान से सुना, तीन एमिटर्स मैंने उसके सामने रखे हुए. ओके, तीन एमिटर्स, तीनों का एक सरफेस एरिया सेम है, तीनों का थिकनेस सेम है, और उसको सामने मैंने वायलेट लाइट ही दिया है जिसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है. मुझे बताओ कौन सा एमिटर तुम चूज करोगे? विल यू गो फॉर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम? तीनों अल्कली मेटल्स हैं, तीनों का ऑक्साइड्स में ले रहा हूं तुम्हें, लेकिन फिर भी स्टिल प्रेफरेबल कौन सा रहेगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में से कौन सा रहेगा? नो स्टूडेंट्स, स्टिल लिथियम.
That means it depends on the emitter also. है ऑक्साइड ऑफ अल्केमेट, लेकिन यहाँ पे कम एनर्जी चाहिए, यहाँ पे कम एनर्जी चाहिए, यहाँ पे यानी यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? यानी इट डिपेंड्स, ये है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? वर्क फंक्शन का मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या? मिनिमम अमाउंट ऑफ, यानी हमें हमेशा ये मिनिमम होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। किसी चीज को तुम्हें ज्यादा, अभी यहाँ पे हम आउटपुट क्या है स्टूडेंट्स? हमारा आउटपुट क्या है यहाँ पे? हमारा आउटपुट ये है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने, हमें ये इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा चाहिए। अगर स्टूडेंट्स मुझे इसकी एनर्जी ज्यादा चाहिए तो मुझे उसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम चाहिए। यानी अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, तो उसका वर्क फंक्शन मुझे मिनिमम होना जरूरी है। अगर मेरा वर्क फंक्शन मिनिमम होगा तो मैं अच्छा सा मेटल में लूंगा, ना कि ये वाला लूंगा। कि दोनों की एनर्जी जो ऐड करूंगा दैट इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट। तो मेरी इंसिडेंट एनर्जी अगर ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होगी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी। लेकिन अगर इक्वल हुआ तो क्या होगा? अगर इक्वल हुआ तो क्या होगा? ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा एनर्जी, वो बाहर आना चाहेगा। वो अगर जैसे वो बाहर आएगा, इफ आई से इक्वल टू, इफ आई से इक्वल टू, जैसे वो बाहर आएगा, कैन आई से द एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड? हाँ स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आयन है ना, केटायंस एनायंस। अगर कोई 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 एटम में से तुमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, थोड़ा सा लेफ्ट ओवर, इट्स एन आयन, क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। सो जैसे वो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, वापस नेचर ऑफ द एलिमेंट बिकम्स पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, वापस ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा। वापस तुम्हारी एनर्जी आ रही है, लेकिन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, वापस वो बाहर आएगा। यानी इलेक्ट्रॉन करेगा क्या सर? जब E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स परफॉर्म्स SHM, सिंपल हार्मोनिक। If your incident energy, ध्यान से सुनना, is equal to work function of the metal, the emitted electrons will perform simple harmonic motion, आगे पीछे होता रहेगा। लेकिन जब भी उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो वो बाहर निकलेगा विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जितना वर्क फंक्शन कम, उतना एनर्जी ज्यादा। और ये है तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी imparted to the emitter, part of the energy is used by the electron to perform work against the electrostatic force of attraction. The rest of the energy is getting converted to kinetic. अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए तो मेरा वर्क फंक्शन मिनिमम होना चाहिए। समेशन ऑफ दीस टू इज इक्वल टू EI। अगर ये जूल में है तो ये भी जूल में रखना है, ये भी जूल में रखना है। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इन दोनों को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहना जरूरी है। ये क्या बन गया तुम्हारा? एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर किसी ने पूछा तुम्हें स्टूडेंट्स व्हाट एग्जैक्टली आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक एक्सप्रेशन, तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन plus the kinetic energy associated with electron which are coming out from the atom of an element. Do I need electrons with minimum kinetic energy? No, we want electrons to come out with maximum kinetic energy. तो अगर ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए तो कंपैरेटिवली ये वैल्यू छोटा होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, what is the second condition for photoelectric effect? What is the second condition of photoelectric effect? That is, I need to see to it that the work function of the metal should be very small. What about the incident frequency? What about the incident frequency? So my incident frequency should be greater than the threshold frequency. तो ही होगा photoelectric effect। ये देखो ना, EI का मतलब क्या है? H into E1, वो greater होना चाहिए। WC का मतलब क्या? H into E1। So my incident frequency should be greater than threshold, तो ही photoelectric effect होगा। Yeah, my incident wavelength should be shorter than the threshold, तो ये photoelectric effect होगा। What about my emitter? My emitter should be of a very low work function. तो students, ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाता है conditions for photoelectric effect. Very sorry. Conditions for photoelectric effect. क्या ये पार्ट क्लियर हुआ students? Yes, sir. Can I erase this, students?
Yes, sir. मुजफ्फर तो लास्ट लेक्चर में कहाँ था मुजफ्फर? हाँ मुजफ्फर, सर बाहर गया था। वेरी गुड। कहाँ घूमने गया था? यस सर। हाँ अकेले अकेले। Okay, friends. So now तुम्हारा शुरू अभी इक्वेशन of science photoelectric equations में। Okay, incident energy is equal to work function plus kinetic energy. Agreed? Or incident energy is equal to work function plus kinetic energy maximum. तो मुझे ये क्या चाहिए? Minimum. Incident energy is h into nu I, which is equal to h into nu zero plus half m v max square. Agreed? अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो h mu I minus h mu zero is equal to half m v max square. Can I remove h common? Into bracket mu I minus mu zero is equal to half m v max square. Therefore, can I say incident frequency minus threshold frequency is equal to half m v max square upon h. ये हुआ तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। यानी तुम्हारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड होगा तो ही तुम्हारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। कंडीशंस में यहाँ पे लिख लेता हूँ। व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स? कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर photoelectric effects means your incident energy should be greater than the work function. Your incident frequency should be greater than the threshold frequency. ये threshold है students, इसको नाम देते हैं threshold frequency. Incident wavelength should be less than threshold wavelength. ये भी ध्यान में रखना। Threshold wavelength. You getting it? The work function of the emitter should be work function. Should be minimum. ये सारे तुम्हारे कंडीशन होंगे। दूसरी बात, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टूडेंट्स is an instantaneous. एक आंसर सुनो फ्रेंड्स, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? तो इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ मालूम है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब नो टाइम लैग। यानी ये तुम्हारा एमिटर है स्टूडेंट्स, ये अगर तुम्हारा एमिटर है, okay, जैसे तुम्हारा फोटोन स्ट्राइक होता है इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, एक जरा भी टाइम मिस नहीं करेगा। इट कैन बी अ प्रोसेस ऑफ लेस देन, इट कैन बी नैनो सेकेंड्स के अंदर। इट्स एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस स्टूडेंट्स, नो टाइम लैग। जैसे फोटोन स्ट्राइक होगा इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन टू number of emitted electrons. Students, this ratio is always equal to 1:1. Since number of incident photons to number of emitted electrons is always equal to 1:1. ये भी ध्यान रखना।
यानी अगर एक फोटोन स्ट्राइक होगा, एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर ही आए। 10 प्रोटॉन स्ट्राइक्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, ये ध्यान रखें। तो अगर किसी ने पूछा व्हाट एक्जैक्टली फोटो करंट, फोटो करंट क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted per unit time, है ना? And these electrons have a charge q, तो कहने से n into q by t, that's photoelectric current. That's photoelectric current. Number of electrons having charge q per unit time is called as photocurrent, we consider, and which is an ampere. और ये photocurrent किसके ऊपर डिपेंड होता है? सर it depends on the incident, यानी ये कंडीशन होना जरूरी है। ये कौन सा है तुम्हारा? सर ये तुम्हारा Einstein's photoelectric equation। Incident frequency will be greater than the threshold frequency. You can get your answer according to this. क्या ये इक्वेशन में वेवलेंथ में भी लिख सकता स्टूडेंट्स? ये देखो ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इसी को हम वेवलेंथ में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। Can I have the same equation in terms of wavelength? Why not? What is incident energy? H nu की जगह पे कहना है hc अपॉन लैम्बडा इंसिडेंट। इसको मैं इस तरफ लूंगा, माइनस वर्क फंक्शन hc अपॉन लैम्बडा 0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना स्टूडेंट्स? Therefore can I say hc outside into bracket 1 upon lambda incident minus 1 upon lambda 0 is equal to kinetic energy maximum. That's a relation. Are you getting, students? Is this clear? अगर तुम इसका डिफरेंस निकालोगे तो लैम्बडा 0 माइनस लैम्बडा है अपॉन लैम्बडा है into lambda 0 is equal to kinetic energy maximum upon what exactly you consider will be hc. ये तुम्हारा इक्वेशन होगा। और ये सारे किसके लिए मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट्स? प्रॉब्लम्स के लिए दे रहा हूँ। जब भी प्रॉब्लम्स आएगा ना स्टूडेंट्स, यही तुम्हारे फॉर्मूला से पास। हर एक लास्ट कंसेप्ट आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? कैन आई इरेज इट? Yes, sir. अब इसका एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के हिसाब से तुम्हारा ग्राफिकल दिया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। ये अगर फोटोइलेक्ट्रिक रिफ्लेक्टर का मैं सेटअप बता दूं स्टूडेंट्स, तो डायग्राम कैन बी इन दिस मैनर। इट्स अ काइंड ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब की तरह स्टूडेंट्स। ओके, जहाँ पे तुम्हारा ये विंडो है, ये ग्लास विंडो है, यहाँ पे तुम्हारा एमिटर है स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा एमिटर है, और यहाँ पे तुम्हारा कलेक्टर है। ओके, ये ग्लास विंडो है और यहाँ पे तुम्हारा सोर्स रखा हुआ है। और फिर इसको मैंने कनेक्ट कर दिया to an external source, if I consider. You're getting it? Let us see that I've taken this connected to a rheostat, a key, negative, positive, ये तुम्हारा EMF, ये key, ये rheostat, और ये तुम्हारा सर्किट। तो जी ये एक सिंपल डायग्राम मैंने दे दिया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अभी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये जो है तुम्हारा एमिटर है ना स्टूडेंट्स, ये जो एमिटर मेरा ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल्स मैंने कोट करके रखा हुआ है, तो जो ये है ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल, ये तुम्हारा कलेक्टर है।
मुझे बताओ स्टूडेंट्स, एमिटर का पोटेंशियल किस तरफ है? तुम लोग जैसे कनेक्टेड नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द सोर्स। ये क्या है? कलेक्टर। कलेक्टर का पोटेंशियल क्या है सर? इसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, इसका हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, एंड दैट इज टू द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द सोर्स एज अ बैटरी। मेरा ईएमएफ है। अभी सबसे पहले मेरा की ओपन है स्टूडेंट, ध्यान से सुना, की मैंने ओपन रखा है, यानी सर्किट तो कंप्लीट नहीं होगा। मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक मैंने गैल्वेनोमीटर बिठा दिया। कंप्लीशन में गैल्वेनोमीटर हो गया, यहाँ पे मैंने एक गैल्वेनोमीटर। नाउ स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। ये तुम्हारा ग्लास विंडो है, यहाँ से तुम्हारा लाइट, जैसे मैंने ग्लास विंडो खोला, जैसे मैंने ग्लास विंडो खोला, फोटोन स्ट्राइक होगा। और मैंने क्लियरली बोला है, इट्स एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, नो टाइम लैग। एक फोटोन स्ट्राइक होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया क्योंकि एक फोटोन स्ट्राइक हो रहा है। वन फोटोन इंसिडेंट, वन फोटोन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कंडीशन क्या है? हाँ सर, यहाँ आपने लिखा है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। ऑफ कोर्स वो एक बड़ा बड़ा कंडीशन है, तो एमिशन तो हो गई, है ना। और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, मैंने की को ओपन ही रखा है, मैं की क्लोज ही नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैंने की को ओपन रखा है। मुझे ये बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा? will the galvanometer will show any reflection? हाँ स्टूडेंट्स, forget about coming over here. Will this galvanometer will show a reflection? ये मेरा galvanometer, क्या ये galvanometer के अंदर तुम्हें रिफ्लेक्शन दिखाई देगा स्टूडेंट्स? हाँ या ना? की ओपन है, सर्किट ओपन है। जैसे मैंने विंडो खोला, सोर्स में से जो लाइट आ रही है वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है। ये मेरा ई का मतलब एमिटर है। आई गेट इट? मैंने बोला नेगेटिव पोटेंशियल, लेकिन ये सर्किट ऑफ है स्टूडेंट्स, यानी इसका पोटेंशियल है ही नहीं है, नेगेटिव है ही नहीं है, पॉजिटिव ही नहीं है। ये सोचो ना, मैंने दो रॉड्स रखे हैं, मेटालिक रॉड्स, एक एमिटर रखा है, एक कलेक्टर रखा है, मैंने सिर्फ डायमीटर कनेक्ट कर दिया। जैसे मैंने विंडो खोला, लाइट अंदर गिरी, इलेक्ट्रॉन तो बाहर आएगा क्योंकि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, क्या ये गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन बताएगा? हाँ स्टूडेंट्स, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए यस सर, इट्स एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, नो टाइम लैग, नो टाइम लैग। अगर मैंने यहाँ पे पूरा पूरा इवैक्यूएटेड रखा स्टूडेंट्स, getting it, no obstruction to the flow of electrons, electrons will manage to reach to the collector, circuit complete होगा होगा होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, लेकिन वो छोटा सा डिफ्लेक्शन दिखाएगा। हमें हमें ज्यादा फोटो करंट चाहिए स्टूडेंट्स, हमें ज्यादा फोटो, यानी मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए तो इसका पोलैरिटी मुझे बढ़ाना पड़ेगा। इसको तुम ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल दे दो, इसको तुम नेगेटिव पोटेंशियल दे दो। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? और वो कैसे करोगे? बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस। अगर सपोज मैंने जॉकी को यहाँ पे लगा दिया, तो देखो रेजिस्टेंस कम होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अगर मैंने जॉकी को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, देखो ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो क्या होगा? पोटेंशियल भी कम होगा। यानी स्टूडेंट्स, तुम्हारा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स का जर्नी कलेक्टर की तरफ, और कौन डिसाइड करता है? पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर। प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, अगर मैंने कलेक्टर का पोटेंशियल 3 पॉजिटिव रखा, कलेक्टर का पोटेंशियल ज्यादा रखा, कलेक्टर का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, कलेक्टर का पोटेंशियल और पॉजिटिव कर दिया, मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रीच करेंगे? सर ये 0 वोल्ट का मतलब आपने की को ऑफ रखा है, ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या रीच करेंगे? हाँ सर रीच करेंगे, लेकिन करंट कम होगा। यहाँ पे सर, यहाँ पे शायद ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रीच करेंगे, यहाँ पे करंट बढ़ेगा क्योंकि इसका पॉजिटिव पोटेंशियल आपने बढ़ा दिया। कैसे? जॉकी की वजह से। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर इसका पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ा दिया, हाँ सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे, यहाँ पे और फोटो करंट बढ़ेगा, और पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया तो और होगा। लेकिन एक हद के बाद में, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, जब भी तुमने इसका पॉजिटिव पोटेंशियल एक हद के बाद में बढ़ा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। प्लीज ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होगा? अगर मैंने ये कलेक्टर का पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना,
इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है और वो रीच हो रहा है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा तो क्या ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आ सकेंगे? नहीं सर, ये इलेक्ट्रॉन्स अभी अपना यू टर्न मारना शुरू करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये अभी एक नेगेटिव चार्ज का डिस्चार्ज हो गया यहाँ पे। तो क्या करंट एक सैचुरेशन लेवल पे आएगा? यस, करंट विल सर्टेनली रीच टू अ पर्टिकुलर सैचुरेशन आल्सो। यानी करंट ग्रेजुअली बढ़ेगा। ध्यान से देखना, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाद में क्या होगा? एक लिमिट के बाद में क्या होगा? even electrons even electrons even electrons with maximum kinetic energy cannot reach the collector. ये क्या बन जाएगा? electrons with maximum kinetic energy also cannot reach the collector. ये क्या हो गया? ये हो गया stopping potential of collector, stopping potential of collector, जिसको हम लिखते हैं Vs. क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? है ना? करंट बढ़ेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन तुम्हें दिखाई देगा, कुछ हद के बाद में एक ग्राफ तुम्हें पैरेलल भी दिखाई देगा, उसका मतलब सैचुरेशन पे आएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो भी नहीं रीच कर रहे हैं, उसका मतलब एक हद तक तुमने एक पोटेंशियल डेवलप कर लिया। यहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी अगर किसी ने तुम्हें पूछ लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है और व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो तुम्हें क्या आंसर देना है? Stopping potential, students, is that maximum potential, or that minimum potential given, that minimum potential given to the collector. Answer that minimum potential given to the collector, so that even electrons with maximum kinetic energy, cannot reach to the collector. That means the answer देखना students, V is equal to W upon Q. W is equal to V into Q. Work done by electrons, okay, with maximum kinetic energy cannot manage to reach, okay, even electrons with maximum energy. So EV, V is what? Vs कौन सा है? Stopping potential. Can I say work done is equal to kinetic energy? Therefore, can I say my formula will be equal to what? Charge of electron, stopping potential of an electron is equal to kinetic energy maximum. Or can I say charge on electron, stopping potential of an electron is equal to work done by electrons. क्या ये क्लियर हुआ? So EVS is equal to half m v square. Students, क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Can I erase this now? सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट था स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको ओपन रखूं तो भी करंट होगा, लेकिन बहुत ही कम दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, नो टाइम लैग, एक फोटोन स्ट्राइक, एक इलेक्ट्रॉन। मुझे ज्यादा करंट चाहिए तो आई बिकम ग्रीडी। हाउ डू आई बिकम ग्रीडी? सर ऐसा करते हैं ना, रेजिस्टेंस को कम करते हैं, रेजिस्टेंस को कम करते हैं, यानी इसका पॉजिटिव पोटेंशियल में बढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने उसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया तो एक हद तक मैंने बढ़ा दिया तो करंट बढ़ते गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद में मैंने एक पोटेंशियल डेवलप कर लिया है, that is minimum positive potential given to the collector. वहां पे हुआ क्या? सर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड फॉर्म हो गया। अभी दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो भी, यानी पहले कौन से इलेक्ट्रॉन्स रीच कर रहे थे स्टूडेंट? ध्यान से देखना, ये जो पॉजिटिव है और ये जो पॉजिटिव, यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन्स रीच कर रहे थे? ये देखो स्टूडेंट, ये तुम्हारा एमिटर है। एवरीबॉडी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये जो तुम्हारा एमिटर है, ये एमिटर में से देखो ये सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। प्लीज स्टूडेंट्स, ये जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, आई गेट इट? तो मुझे बताओ, क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रीच होंगे? नहीं स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान में रखना, जो फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं ना एमिटर, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी लेस होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मोर होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अभी मुझे बताओ, अगर सपोज मैंने इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत कम रखा,
तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आ रहा है, तीनों का काइनेटिक जरूरी नहीं कि सेम है, इसका लेस है, इसका मोर, इसका कौन सा रीच करेगा सर, ये तीनों में से ये ही आएगा इस तरफ। अभी क्या होगा, अगर मैं थोड़ा सा पॉजिटिव पोटेंशियल में तो सर शायद ये और ये दोनों आएंगे, अगर मैंने और बढ़ा दिया तो सारे आना शुरू कर देंगे, तो एक होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्रिएट होगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद में, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद में क्या होगा, नाउ दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रीच टुवर्ड्स इट, तो रिपल्शन हो जाएगा, तो एक सैचुरेशन हो गया। उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। So stopping potential is that minimum positive potential given to the collector, is that minimum potential given to the collector, so that even electrons with maximum kinetic energy cannot reach the collector. क्या ये क्लियर हुआ? क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ अभी? स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? Yes, sir. Himanshu, is it clear now to you? Himanshu, is it clear? Okay. Please will just ध्यान रखना. It's only now graphs will be left that I'm going to pick up whenever we meet. पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम मीट करेंगे ना स्टूडेंट्स, प्लीज पहले मैं ग्राफ कंप्लीट कर दूंगा एंड देन विल गो फॉर द मल्टीपल क्वेश्चंस, क्योंकि आई डोंट वांट टू ग्राफ, और ग्राफ पूरा इसके ऊपर है डिपेंड। नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट्स, मे बी इन दिस कॉलेज व्हाटएवर इट इज, प्लीज इसके वीडियो लेक्चर्स देखना, इसके बगैर तुम लेक्चर्स के अंदर आना ही मत, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और तुमने नहीं आंसर दिया ना, उसी टाइम पे मैं तुम लोग को बाहर निकाल दूंगा ना। देयर आर स्टूडेंट्स हार्डली 14 आर लेफ्ट ओवर हियर इन द क्लासरूम, बाकी सारे भाग गए, 10 स्टूडेंट्स या 15 स्टूडेंट्स भाग गए, उनको तो मैं भगा ही दूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, आई विल नॉट, क्योंकि पता चल जाएगा क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकेंगे तो दे विल बी ऑटोमेटिकली आउट। ये ग्राफ को समझने के लिए स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट आना चाहिए। जस्ट द लास्ट पार्ट आई वांट टू से स्टूडेंट्स, that will be the end of the session students. Means अगर किसी ने पूछा what are the factors on which photoelectric effect depends, then the factors on which photoelectric effect depends on to what, first is work function of the emitter students, second it depends on the incident frequency, third it depends on the intensity, am I getting it, it depends on the intensity of it we consider, these are the three important, and potential of the collector. Four, I repeat students, work function of the emitter, incident frequency, intensity of incident light and potential of the collector, ये चार फैक्टर्स के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम ग्राफ्स पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, वो इन चार फैक्टर के ऊपर, एंड दिस पार्ट आई एम गोइंग टू पिक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? So we wind up the sessions now. Okay students? Okay, chal bye.